Good morning. Today we will start perfect continuous tense. Okay, so last time we had done present, past, and future tenses. There are three types of tenses we have covered, and fourth one we had left. So we have already covered what is present simple, present perfect, and present continuous. Past simple, past continuous, past perfect, and future simple, future continuous, and future perfect. And we have to do this remaining part for every time, past, present, and future. There is one more form of tense, that is perfect continuous. So this perfect continuous tense, before we move on, we will recap. We had discussed about like present simple. In present simple, we saw all like present go, run, I go, he goes, he watches TV, he reads a book. So this is what is called present simple. And also we had done what is called present continuous. What is present continuous? The ing form. The action is going on. The action is being carried out now. So action is going on means I am running, I am reading, he is traveling, he is drawing. So is form, this is if we in the simple form, if we add ing, that becomes continuous. And we saw what is perfect. Perfect is made by adding what I have done recently. Okay, I have, if I say present perfect, I have taken dinner. Okay, he has read a book. Okay, they have come home. So have, has, all these form present perfect. That means an action has been done. Okay, just now or sometime before. Now we will see what is past. Like the past simple, same thing applies. If go is for present simple, past simple will be went. So he went, we went, we we read a book, they ran on the track. So this is a past simple form of verb. Go, we went, run. Okay, this is a simple present. Mm, this is a simple past. Now we will do what we had covered in our last class. We will see we had done perfect. Present perfect we did now. Continuous we did and simple we did. Now we'll move on to what is called perfect continuous. Okay, in order to understand perfect continuous, we'll see what is perfect continuous in the past tense. Past tense, if we say that perfect continuous in the past tense, in the past simple perfect, what is the rule? Simple perfect, I had left my home when the bell rang. एक एक्शन होने के पहले मैं कुछ कर चुका था, वो है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या चेंज है कि
past action ongoing up to another past point. ongoing, ये जो है past perfect में I had left, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो रहा है काम. I had left. यहां है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि पास्ट एक्शन दैट हियर पास्ट एक्शन एंडेड. I had left the house, but here the past action is continuing before another past action. उसमें पास्ट एक्शन कैसे कंटिन्यू करता है? टू show an action that started in the past, continued for some time and was still ongoing. जब और एक एक्शन शुरू हुआ तब तक वो चालू था, लेकिन हमने पहले क्या देखा कि जब तक एक एक्शन शुरू हुआ तो एक्शन बंद हो गया था. I had left the home when the bell rang. लेकिन यहां एक्शन चालू है, पास्ट एक्शन चालू है, तो उसको हम देखेंगे. She had been studying for 3 hours when the phone rang. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और पास्ट परफेक्ट में हमने क्या देखा? पास्ट परफेक्ट में इसी को अगर हम पास्ट परफेक्ट में बोलें तो ये होगा she had studied for 3 hours when the phone rang. ये है पास्ट परफेक्ट में. ये पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? शी हैड स्टडीड, वो काम खत्म हो गया है. व्हेन द फोन रैंग, फोन घंटी बजने के पहले काम खत्म हो गया है. लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ घंटी बजने से पहले से काम चालू है. शी हैड बीन स्टडिंग, वो पढ़ रही थी. 3 आवर्स हो गया वो पढ़ रही थी, अभी भी पढ़ रही है, वो फोन रैंग हुआ. She had been studying. So perfect, past perfect और past perfect continuous में फर्क इतना ही है. She had studied past perfect. She had been studying. जब काम चालू रहता है past में तो यहाँ studied की जगह been studying, इतना ही यहाँ पर ऐड करना है. I hope you understand. Had been studying, ये दो वर्ड ऐड होगा इंस्टेड ऑफ स्टडीड. स्टडीड में एक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन हैड बीन स्टडिंग पास्ट में एक्शन चालू था जब फोन आया. अनदर एग्जांपल है कि when they had been playing football since morning before it started raining. अब जब बारिश हो रही थी, they had been playing football, जब बारिश शुरू होने वाला था तो दे हैड बीन प्लेइंग, वो खेल रहे थे. लेकिन इसका अगर पास्ट कंटिन्यूअस नहीं करके पास्ट परफेक्ट करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? दे हैड प्लेड. अभी इसको कहेंगे दे हैड प्लेड पास्ट परफेक्ट में. व्हेन इट रेन्ड, दे हैड प्लेड व्हेन इट स्टार्टेड raining. They had played. लेकिन क्योंकि एक्शन खत्म नहीं हुआ, they had been playing, जब बारिश शुरू हुआ तो वो खेल रहे थे. So they had played की जगह हम इसको लिखेंगे they had been. ओके, ये पास्ट में. अगर इसी को प्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, अभी प्रेजेंट में करेंगे तो दे हैड बीन की जगह हैव बीन लगेगा. ओनली दिस मच ऑफ चेंज. हैड बीन वो खेल रहे थे, लेकिन वो खेल रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इन प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा? इसको अगर हम फर्स्ट वाला सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करें, आई हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 5 years. मैं अभी काम कर रहा हूं, पहले से कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं. तो काम चालू है प्रेजेंट परफेक्ट में, अभी भी चालू है.
लेकिन पास्ट में चालू था। इसमें अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चालू है, प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे तो आई हैव प्लेड, आई हैव वर्कड, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, आई हैव वर्कड। और अगर हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं तो हैव की जगह आई हैव बीन वर्किंग, वर्क की जगह वर्किंग हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू कर रहा है, काम कंटिन्यू कर रहा है। आई हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव वर्कड, इतना ही है। तो अभी फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, आई विल हैव वर्कड। अगर हम कहेंगे काम करने के बारे में, आई विल हैव वर्कड, फ्यूचर में मैं काम कर चुका हूँगा, एक्शन खत्म हो जाएगा फ्यूचर में, इस टाइम में। क्या लिखा है पहले, क्या है ये कि बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर अ डिकेड। अभी वो सिटी में रह नहीं रहा है। बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव बीन, वो अभी अभी अगर भी है उस सिटी में, लेकिन वो बोल रहा है कि फ्यूचर में वो रहता चला जाएगा। ही विल हैव बीन वर्किंग। ओके, फ्यूचर में अगर ये आई विल हैव वर्कड, अगर फ्यूचर परफेक्ट में सिंपल परफेक्ट कहेंगे आई विल हैव वर्कड, लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे तो आई विल हैव बीन वर्किंग। इतना ही फर्क है। हैव वर्कड के जगह आई विल हैव बीन वर्किंग, वर्कड वर्किंग हो जाएगा और हैव बीन, और पास्ट में होगा तो हैव हैड बीन हो जाएगा। शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग पियानो फॉर 2 hours बाय द टाइम हर टीचर अराइव्स। मतलब अभी वो पियानो नहीं बजा रहा है, अभी वो जब उनका टीचर आएंगे तो वो पियानो बजाता रहेगा, वो बजाती रहेगी, तो वो शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिस करती रहेगी फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इतना ही फर्क है, इज वेरी सिंपल। You have to just revise the last video, you go through the last video and compare। and यहाँ पर लिखा हुआ है the structure has been given here, the subject रहेगा she और he, और जो भी नाम है वो subject है। will have वो future में will have रहेगा, plus been रहेगा, is present participle, that means present participle means ing form, playing, working, ऐसा रहेगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वैसा रहेगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट रहेगा ही और शी और राम श्याम जो भी है नाम, हैड रहेगा, बीन फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल इंग फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट इंग फॉर्म। टू पास्ट परफेक्ट में क्या है, टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। ये हमारा तीनों टाइम का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का भी आज डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम और कुछ नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।